Hi guys, in this video we are going to discuss about the SMP, CA final SMP case studies. So this is the very critical part of the SMP strategy, and the lot of the students are facing the problem to tackle these type of the case studies. So in this video we are going to discuss the full case study digest. Like this video is in the parts, but we are just going to we are just try to cover this full playlist according to this case studies. So let's dive in. So this and what is the source for this case study? So this is the ICA case study digest. You can download this from the website and just carry on. So let's start. It's a case study number one. Is a BA is the second largest airline in the country X, aviation industry in the country X. Basically BA क्या है, आपकी क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट एयरलाइन है कंट्री की. फॉर द सिंपलिसिटी हम इसको मान लेते हैं भारत एयरलाइंस. ओके. एविएशन इंडस्ट्री इन द कंट्री एक्स इज ग्रोइंग फास्ट. बेसिकली इंडिया में एविएशन इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है. इन द 2011, it's a 2011, 45 million people travel to, from and within the country. Basically the people traveled to 110 is a 45. Okay. And by the 2020, within the 10 years, this number is double. It's 100 millions, and by the 2030 its expectation is 300, like 3 times. Company is expected to be the third largest air transport market in the world. So behind the USA and China, government is trying to meet the significant growth potentials of the aviation industry. It will create the challenges also for the airline industry and its industry partners. Government also want to ensure that the proper business and the policy environment should not place the hurdle which inhibit the growth and reduce the level of benefit that the aviation can deliver to the nations. The industry, its supply chain partners, and the government and policy makers have a clear mandate to work in collaboration toward the common goal of ensuring the aviation and economic social benefits are fulfilled. Like supply chain partners and the governments and policy maker basically collaboratory work कर रहे हैं अपने common goals को ensure करने के लिए. Like the country X would be the third largest country in the air transport. So BA facing क्या कर रहा है problems in the current environment? So air turbine fuel price continue to be 40% of the operational cost. Basically this is the cost. So cost ATF 40% of cost. Okay. And duties is the 40%, 14% on 40%. Local tax 29%. So these are the cost. About 20 to 35 their cost excluding the ATF. Basically depreciation rate 25 to 30% excluding ATF. Entry of the low budget carrier, full service carrier like BA have a higher overhead cost. Like this is the low budget carrier, so have the high overhead cost. Basically overhead cost is quite high. So forced to offer the discount to passenger looking for the great bargain. Basically ये discount भी दे रहे हैं अपनी bargain करने के लिए, passengers को attract करने के लिए. Continuous improvement tourism infrastructure and policy, human resource development, air transport density are among the area could further enhance the country X competitiveness. Ease of doing the business over the last of 5 years has risen. Basically no entry barriers. No entry barriers. Intense competition among the domestic airline carriers need to capture a slice of ever expanding market, and the passenger price sensitive makes the airline difficult to raise the price. Basically intense competition है market में, so number of the competitors are quite high and competition, that's why they don't want to
raise their ticket prices. ATF is more expensive here in India. Expensive than world. So this is the crux of case study, like what we have done this from, like Bharat Airlines. Their expectation is 45 million, then 2022, 2020 100 millions, and then 300 millions. कोस्ट क्या क्या आ रही है? एटीएफ है, ड्यूटी है, लोकल टैक्सेस है, डेप्रिसिएशन है, एक्सक्लूडिंग द एटीएफ। कोई एंट्री बैरियर नहीं है इस चीज़ में, कंपटीशन इस वजह से हाई है। और जो बेसिकली आपका एटीएफ है वो 40 और 35 और 40% ज़्यादा एक्सपेंसिव है इंडिया में। तो आपको इस चीज़ से क्या मतलब टॉपिक समझ आ रहा है, क्या हो, किस में है ये पाँचों पॉइंट? माइकल पोर्टर फोर्सेस मॉडल, Michael Porter theory, creating a superior performance, complete advantage. Firm's overall advantage derives from the difference between value it offer to a customer and the cost of creating that customer value. Basically, in order to survive and prosper in the market, firm must meet the two criteria: supply what the customer want to buy, and they must survive the competition. सो डिस्टिंक्ट कम्पिटेंसीज क्या लेके क्या थ्योरी लगाए गए यहाँ पे? एक तो लो कॉस्ट एडवांटेज, बेसिकली अपनी कॉस्ट कम कर दो और कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करो। एक डिफरेंशिएट स्ट्रेटजी लगाओ यहाँ पे कि जिसके थ्रू आपकी मतलब आप बिल्कुल अलग ऑफर कर रहे हो। आपने बेसिकली क्या है, सब ऑफर कर रहे हैं कि 10,000 रुपये में आपको बिजनेस क्लास, आप सब 10,000 रुपये बिजनेस क्लास दे रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, 10,000 रुपये में बिजनेस क्लास तो दे ही रहे हो, प्लस साथ में फूड फैसिलिटीज़ और एक्स्ट्रा उनको जो उनका रहने का है स्वीट्स भी प्रोवाइड कर रहे हो। सो वो चीज़ एकोमोडेशन भी प्रोवाइड कर रहे हो आप उनको, तो वो चीज़ आपको थोड़ा एडवांटेज बनाती है। सो कॉस्ट रिडक्शन इन द BA कैन अचीव थ्रू द yield management and the varying prices depending on capacity utilizations. Selling seats by the internet rather than through the travel agents. बेसिकली क्या क्या चीज़ें आप लगा सकते हो यहाँ पे, कॉस्ट रिडक्शन किस तरह से आप कर सकते हो। सबसे पहला क्या होगा कि आप बेसिकली क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप ऑनलाइन टिकट सेल कर सकते हो, क्योंकि इस केस में आपको कमीशन कम देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको कमीशन कम देना पड़ेगा। दूसरा क्या कर सकते हो, ओवरहेड कॉस्ट को ट्रिम आउट कर सकते हो, कस्ट आउट ऑफ द टाउन एयरपोर्ट्स। बेसिकली आउट ऑफ द टाउन एयरपोर्ट्स पे जाके वहाँ पे आपकी जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या हो सकता है, आप प्रिंटेड टिकट मत निकालो, सीट एलोकेशंस हैं और फ्री मील एंड ड्रिंक्स वगैरह दे सकते हो, जिससे आपके जो पैसेंजर्स हैं वो आपके पास ज़्यादा आएंगे। एफिशिएंट ऑपरेशंस में आप क्या कर सकते हो, फास्ट टर्न आउट टाइम लगा सकते हैं यहाँ पे एयरक्राफ्ट के लिए, ताकि आपका यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो। एक्सेप्शन पॉलिसीज नहीं दे सकते, जो कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग है, नो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द पैसेंजर्स हो राइज द रेट। बेसिकली उससे आपका क्या होगा, आपकी जो टाइमली ऑपरेशन है वो होंगे और आपकी कॉस्ट बचेगी। डिफरेंशिएशन में क्या कर सकते हो आप, when the customer perceive that a business service offering of the higher quality, बेसिकली आप हाई क्वालिटी की सर्विसेज दोगे तो कस्टमर आपके पास आएगा क्योंकि आपकी चीज़ें डिफरेंट है। और इसमें बेसिकली कस्टमर जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, ऑफर की जा रही है, बिजनेस को सुपीरियर होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं इसमें, जो डिफरेंशिएशन है वो फर्म्स की एबिलिटी को देखता है कि डिलीवर कैसे की जा रही है सर्विसेज। और एक मल्टीनेशनल पैसेंजर एयरलाइंस है, जैसे वो अडोप्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑपरेशन अपने पैसेंजर्स को एक हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस देने के बाद, जो उसके राइवल्स नहीं दे रहे हैं। और ये अलो करती है कि आप बेसिकली चार्ज करो प्रीमियम अपनी फ्लाइट के लिए कंपेयर टू अदर एयरलाइंस। लाइक आपने एग्जांपल सुना होगा, एमिरेट्स है, या बेसिकली आपकी एक तो एमिरेट्स है और दूसरी आपकी एयरलाइंस है जेट एयरवेज, तो चलो अब बंद हो गई, पहले उसके आज काफ़ी अच्छी सर्विस होती थी। एमिरेट्स हो गई या आपकी ब्रिटिश एयरलाइंस हो गई, तो ये काफ़ी अच्छी आपको सर्विस देती है कंपेयर टू अदर एयरलाइंस, और इसीलिए काफ़ी हाई क्लास भी है कंपेयर टू अदर। डिफरेंशिएशन एडवांटेज आपको कहाँ भी मिल सकती है, आप बेसिकली उनको एनहेंस फीचर्स दो, लाइक आपके प्राइम लैंडिंग स्लॉट्स हैं, लाइक यहाँ पे आपका मेजर एयरपोर्ट्स पे होगा एट द मेजर एयरपोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। सुपीरियर एडवांस टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो,
वेल मेंटेन्ड है आपके एयरपोर्ट्स, क्लीन है, कंफर्टेबल एयरक्राफ्ट हैं, और जो आपके कस्टमर केयर है वो वेल ट्रेंड है। कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज भी दे रहे हो आप उसमें, इन फ्लाइट सर्विसेज में, लाइक हाई क्वालिटी फूड है आपका, ड्रिंक्स हैं, एंटरटेनमेंट है, ये चीज़ है। और कस्टमर वैल्यू बेसिकली इंक्रीज ही की जाती है सब्जेक्टिव फीचर्स से, लाइक इंक्रीज बाय सब्जेक्टिव फीचर्स ऑल्सो, लाइक जैसे एमिरेट्स है वो काफ़ी आपकी क्या है, मतलब काफ़ी अफोर्डेबल नहीं है और उसको एक हाई क्लास माना जाता है एमिरेट्स को। ब्रांड इमेज है, एडवर्टाइजिंग बेस्ड क्वालिटी है। ये आपकी विस्तारा है, विस्तारा और इंडिगो में आप कंपैरिजन करोगे तो विस्तारा को काफ़ी हाई क्लास माना जाता है उस केस में। ये बेसिकली आपकी डिफरेंशियल स्ट्रेटजी हो सकती है। इस केसेस में आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली अगर प्रीमियम सर्विसेज दे रहे हो ना, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, प्राइसेस भी अपने इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि जैसे एप्पल का आईफोन है, लोग उसके लिए पैसा पे करते हैं, नॉट बिकॉज द फीचर्स, नॉट ड्यू टू द फीचर्स ओनली, बिकॉज वो क्लास भी एक तरह से, तो वो चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आपको गेन करने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो बेसिकली आप वैल्यू शॉप मॉडल देख सकते हो। जो वैल्यू शेप मॉडल है वो बेसिकली जनरेट करता है वैल्यू ऑर्गेनाइज करने के बाद रिसोर्सेज को, और डिप्लॉय करता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए, लाइक आप डिलीवर कर रहे हो एयरलाइन सर्विसेज पैसेंजर्स को, या सोल्यूशन डिलीवर कर रहे हो बिजनेस प्रॉब्लम्स के लिए, तो शॉप से ऑर्गेनाइज की जाती हैं एक एग्जीक्यूटिव डिसीजंस बनाने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, असेस करने के लिए प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटीज़ को, और जो आपकी स्ट्रेटजी हैं वे बेसिकली अप्रोप्रिएट होती हैं अचीव करने के लिए सुपीरियर परफॉर्मेंस। हम नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं, भल्ला एंड सिंह LLP है। जस्ट अ मिनट, आई जस्ट टेक इट, वन सेकेंड। 12 मिनट की हमारी वीडियो हो चुकी है, हम इसको 20 मिनट तक लेंगे मैक्सिमम, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो को शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये केस स्टडी सोल्व करने की कोशिश करते हैं फटाफट। भल्ला एंड सिंह LLP अकाउंटिंग फर्म, 20+ ब्रांचेस अक्रॉस द इंडिया, बेसिकली कस्टमर सर्विसेज ऑफर करती है आपको, अकाउंटिंग, इंश्योरेंस, टैक्स कंसल्टेंसी वगैरह में। कंट्री बेसिकली इकोनॉमिक स्लो डाउन से पास हो रही है, और लार्ज नंबर ऑफ द बिजनेस है एंटरिंग इनटू इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्ट्रक्शंस, जैसे मर्जर एक्विजिशन में लोग जा रहे हैं, और जो पार्टनर हैं हर सर्विस डोमेन के, वो बेसिकली टॉप ऑफिसर से मिलते हैं मंथली बेसिस पे, और जो परफॉर्मेंस रिलेटेड डेटा है आपका वो कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द रिसेंट कंडक्टेड पार्टनर मीटिंग्स में। जो पार्टनर्स आर गेटिंग फिक्स्ड कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट अपार्ट फ्रॉम द शेयर इन प्रॉफिट, बेसिकली पार्टनर्स क्या हैं, अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स ले रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द शेयर इन प्रॉफिट्स में, और जो नॉन पार्टनर्स है वो फिक्स सैलरी ले रहे हैं वेरिएबली डिपेंड करने के बाद रेटिंग फ्रॉम द इमीडिएट बॉस और पीएस। जो क्लाइंट रिलेशन ऑफिसर्स हैं वो बेसिकली वर्किंग कर रहे हैं मार्केट टीम मैनेजर्स के साथ, और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मंथली प्रोसेसेस में या एवल्यूएशन टीम में, जो डेटा को प्रेजेंट कर रही है क्लाइंट से BSL पे भी। तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में ये चीज़ें ऐड करो और ये बताओ कि ये कैसे काम करती है। कस्टमर रेटिंग्स है, ऑडिट है, टैक्स कंसल्टेंसी, बिजनेस एडवाइजरी, ये हमारी लास्ट ईयर की है। आपको एक मैनेजर अपॉइंट किया गया है यहाँ पे, और एक्सपीरियंस आपको नॉन फाइनेंस में, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन टेक्निक में, और ड्यूरिंग द डिसीजन लंच टेबल मैनेजिंग पार्टनर एक्सप्लेन द अबाउ प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस एनालिसिस टू यू। तो आप बेसिकली उनको इन टेक्निक के बारे में बताओ, परफॉर्मेंस प्रिज्म, बैलेंस स्कोर कार्ड एंड बिल्डिंग ब्लॉक। एंड बिल्डिंग ब्लॉक साउंड्स इंटरेस्टिंग टू मिस्टर सिंह, ही आस्क्ड यू अबाउट व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक, एंड ये सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे। सो दीज आर द क्वेश्चंस अबाउट बिल्डिंग ब्लॉक, क्वेश्चंस अबाउट building block. So performance management system considered as a key aspect of the management, like must contain the following components, like functional and division organized structures along with the determination of the level of decentralizations. like आपके पास डिसेंट्रलाइजेशन की इसमें पावर होती है कि आप अपनी जो टास्क हैं उनको नीचे के जो एम्प्लॉयज़ हैं या डिपार्टमेंट्स हैं उनमें डिसेंट्रलाइज कर दो। Establish the responsibility center, identify the person who is responsible for it. Like आपने क्या किया, पर्सन वाइज लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, फिर उससे आपने फीडबैक लिया
कि भाई आपने कैसा आपने उस पर काम किया। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हो गई। आइडेंटिफाई किया आपने केपीआई, ये मेजर करने के लिए, यास्टिक देखने के लिए आइडेंटिफाई की केपीआई, आइडेंटिफाई करो केपीआई। रिव्यू करो सिस्टम, कंपेयर करने के लिए एक्चुअल अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। बेसिकली आप एक्चुअल रिजल्ट को स्टैंडर्ड से कंपेयर करो। स्टैंडर्ड से कंपेयर करो। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल अब क्या बोलता है? बेसिकली आपकी ये इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस किसमें? सर्विस बिजनेसेस में। इंप्रूव द परफॉर्मेंस इन द सर्विस बिजनेसेस। मॉडल बेसिस सजेस्ट करता है जो परफॉर्मेंस सिस्टम है वो 3 कंसेप्ट पे बेस्ड है, डायमेंशन, स्टैंडर्ड एंड द रिवॉर्ड। बेसिकली आपकी 3 चीज़ों पे बेस्ड है, डायमेंशन, स्टैंडर्ड और रिवॉर्ड। डायमेंशंस क्या होते हैं? 6 एरियाज आपके यहाँ पे, क्या है आपके 6 एरियाज हैं जिस पे कंपनी फोकस कर रही है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। लाइक द 6 एरियाज जहाँ पर इम्प्रूव करनी है परफॉर्मेंस। कॉम्पिटिटिव्स में है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, फ्लेक्सिबल रिसोर्स यूटिलाइजेशन इंप्रूव होती है। जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बेसिकली आपके बिल्डिंग मॉडल सजेस्ट करते हैं एस्टेब्लिश करने के लिए कि स्टैंडर्ड और डिटरमिनेशन डालो यास्टिक लेवल पे। जो मॉडल है आपके सजेस्ट करते हैं 3 प्रॉपर्टीज जो बेसिकली परफॉर्मेंस मेजर्स के द्वारा डाली जाती हैं, ओनरशिप, अचीवेबिलिटी, फेयरनेस, और एनकरेज करते हैं ये वर्क फोर्सेस को, और ये अचीव करते हैं स्टैंडर्ड को जो एस्टेब्लिश किए गए हैं। ये मॉडल बेसिकली सजेस्ट भी करते हैं कि जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी रिवॉर्ड होनी चाहिए और वो पोजेस होनी चाहिए, क्लैरिटी, कंट्रोल और मोटिवेशन के थ्रू। जो एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस सिस्टम है वो फोकस नहीं करता डिटरमिनेंट्स पे जो स्पेसिफाई किया जाता है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के द्वारा। जो प्राइमा फेसी है ये बेसिक परफॉर्मेंस मिक्स यूज किए जा रहे हैं पार्टनर्स के द्वारा उनकी मंथली मीटिंग में, और जो परफॉर्मेंस इवेल्यूएट होती है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस पे होती है। अब डायमेंशंस में क्या देखोगे, आप ये पढ़ सकते हो, दिस इज नॉट एज इम्पोर्टेंट, और इसमें आप ये देख सकते हो कि कैसे काम कर रही है और किस तरह से होगी। सो आगे के स्टडीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे काम करती हैं। प्लस इस वीडियो में हम इन वीडियो सीरीज में हम कंप्लीट एक केस स्टडी बुक कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये काफ़ी डिफिकल्ट है और लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है इनको सोल्व करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।